Good morning, students. Welcome again. Now only we have finished the video of stoichiometric calculations. So I have explained you how we can do the stoichiometric calculations and how we can solve the reactions, how we can calculate the result in the form of mass or in the form of moles or in the form of volume. Now the another topic is, the next topic in this is limiting reagent. To understand this better, I am giving you one example. Suppose you want to make cookies and you have ingredients for that. All the ingredients you are having, you have oil, you have flour, you have sugar, you have butter also. Maybe some things are very large in number and some things are very less in quantity. So the question arises, how many cookies can you make? Because there is also a fixed ratio, there is going to be a fixed ratio of sugar and flour and butter and oil in making cookies. Whatever is that ratio, that is not our concern. But see, when we were making the cookies, we have made so many cookies and after that suddenly the sugar gets over. Sugar हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया. So we'll be able to make more cookies? The answer is no, because sugar was less in quantity. That is why we can consider that sugar is a limiting reagent. It was in limit, so it is called as a limiting reagent, and the other reagents were the excess reagents. So what we can say, that in many cases the substances in a mixtures are not present in exactly the same amount as required by the balanced chemical equation. So the reactant which is completely consumed when a reaction goes to completion, is called as the limiting reagent. Clear? Because its concentration limits the amount. ये control कर रहा है, because it is controlling the amount of product formed. We can say that product will form according to the limiting reagent only. कितना product बनने वाला है, that depends upon the limiting reagent. जो reagent, जो चीज़, जो substance हमारे पास कम है, वही decide करेगा कि product कितने बनेंगे. Like cookies कितनी बनी है, sugar पे depend करा. We were having the flour, we were having the oil, we were having the butter, but sugar नहीं था, तो इसलिए और cookies नहीं बन पाई. तो other reagents are called as the excess reagent. One more example, suppose we are burning wood. So wood means the fuel or the carbon, and when wood burns, it requires two things mainly. One is wood and another is oxygen. We require, for the process of combustion, we require oxygen. There should be adequate amount of oxygen all around. So we are burning the wood, and wood is there, but wood is consuming and oxygen is consuming. So till what time we can burn this? Till the wood gets over. जब तक लकड़ी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जलता रहेगा. One, the woods will get over, the fire will automatically extinguish. So here wood is the limiting reagent, because it has decided, because the wood has only decided that कितने टाइम तक आग जलेगी और कितने टाइम के बाद बुझ जाएगी. तो ऑक्सीजन इज़ देयर, ऑक्सीजन तो है ही एनवायरनमेंट में, वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. तो दैट इज़ द एक्सेस रिएजेंट. सो लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में वो होता है विच डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो रिएक्शन में कम हो और जो डिसाइड करे कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट. और जो रिएजेंट हमारे पास एज अ लेफ्ट ओवर रह जाए, बच जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सेस रिएजेंट. क्लियर? समझ में आ रही है बात? So on the basis of this, we can say that it is a reagent which is completely consumed during the reaction. Limiting reagent is completely consumed in the reaction, and it is present in small quantity. So it is, we can say that it is the smallest coefficient, smallest stoichiometric reactant. Suppose this is the example. Here the white balls are representing hydrogen molecules and oxygen. The red balls are representing the oxygen molecules. Now suppose we want to make water. Water बनने का process चल रहा है यहाँ पर. We are having 10 molecules of hydrogen and 7 molecules of oxygen we are having. So they both will join and form the water. And what we can see after the reaction, because we were having 7 molecules of oxygen, only 5 get consumed, because we were having 10 molecules of hydrogen only. ठीक है. तो H2O के फॉर्मूला में क्या होता है? द रेशो इज़ 2:1. तो अगर 10 मॉलिक्यूल्स हमारे हाइड्रोजन के कंज्यूम हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के कितने चाहिए होंगे? 5 ही चाहिए होंगे. बट वी वर हैविंग 7, तो ऑक्सीजन हमारे पास बच गया. आप देख सकते हो 2 रेड बॉल्स अभी भी बचे हुए हैं, और 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाटर के बन जाएंगे, हाइड्रोजन के. यहाँ पर ज़्यादा बनाए हुए हैं, आप उसको काउंट मत करो. मतलब 5 बनेंगे हमारे पास. कितने बनेंगे? H2O यहाँ पर इन्होंने 10 बना दिए. 10 तो नहीं बनेंगे. अगर 10 हमारे पास H2 है, तो 7O2 है,
तो कितना बनेगा 10H2 है ना, H2O, हाँ तो 10 बन जाएंगे वाटर के, और हमारे पास ऑक्सीजन 7 था, तो 10H2O में हमारे पास एक ही हमें चाहिए था, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर बच गया, तो 10H2O एंड 2O2 ये हमारे पास लेफ्ट ओवर है। तो ऑक्सीजन क्योंकि बच गया है और हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, तो हेयर हाइड्रोजन इज़ व्हाट, हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीजन इज़ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को हम कंसीडर करेंगे कि हमारा एक्सेस रिएजेंट है, और हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और कितना वाटर प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन ख़त्म हो गया हमारा वो बच गया, वापस बच गया, हमारे पास नहीं रहा ज़्यादा। क्लियर। तो इसी के बेस पर दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 50.0 kilograms of nitrogen and 10.0 grams of hydrogen are mixed to produce ammonia. So calculate the ammonia formed and identify the limiting reagent if in this reaction, if any. So first of all what we will do, as I have told you कि limiting reagent के steps क्या होते हैं. First of all we will write the reaction, we will write the skeleton reaction, then we will balance the reaction, and then we will calculate the number of moles of reactant and product. सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, number of moles, so that we can get the ratio of moles. तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे. मास इज गिवन टू अस 50 किलोग्राम, सो वी विल कन्वर्ट द किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स. सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट विल बिकम 50 इंटू 10 टू द पावर 3. एंड नाइट्रोजन के हम निकाल रहे हैं पहले मोल्स, एंड नाइट्रोजन का मोलर मास है 28. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो 50 इंटू 1000 अपॉन 28, इट विल बिकम 1.786 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स हमारे पास किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास गिवन है 10 kg. अगेन we will convert it into grams, so 10 into 1000 upon hydrogen molar mass 2, it becomes 5.0 into 10 to the power 3 moles. Now with the help of this reaction we are already aware that 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen forming 2 moles of nitrogen. Means according to the equation 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen. Clear. And here we are having 1.786 moles of nitrogen. 1.686 into 10 to the power 3 moles of nitrogen will require कितना हाइड्रोजन, 3 into 1.786 into 10 to the power 3, so 5.36 into 10 to the power 3 moles of हाइड्रोजन के हमें चाहिए. बट हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पर हैं कितने मोल्स, बट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं कितने, 5 इंटू 10 टू द पावर 3. यानी हमें चाहिए कितने, 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के. बट वी आर हैविंग 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. इट मीन्स हाइड्रोजन इज लेस, इट इज़ इन लिमिटेड अमाउंट. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज अ लिमिटेड अमाउंट हेयर एंड नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट हेयर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेट द अमोनिया. अब अमोनिया किस पर डिपेंड करेगा, अमोनिया डिपेंड करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है. तो हमने क्या देखा ऊपर से ही, अब हम देखेंगे दोबारा से दैट विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन दैट 3 moles of hydrogen, 3 moles of hydrogen gives us 2 moles of ammonia, and here we are having 5 into 10 to the power 3 moles. So 5 into 10 to the power 3 moles of hydrogen will give us कितना, कितना देगा हमें, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना देगा, 2 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है ये, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करके भी नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यू कैन डू द कैलकुलेशंस. 2/3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, इट विल बिकम 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स. सो हमें कितना मिलने वाला है अमोनिया, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स. कैलकुलेट द अमोनिया प्रोड्यूस बोला है उन्होंने, एंड ग्राम्स बोला है, ब्रैकेट में ग्राम्स लिखा है, एंड वी हैव कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ मोल्स. तो अब क्या करेंगे, इस मोल को ग्राम में चेंज कर लेंगे. तो मास इज इक्वल इनटू मोल्स इंटू मोलर मास. मोल्स हमने निकाले हैं 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3, और मोलर मास हमारे पास अमोनिया का कितना होता है, 14 + 3 17. तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 हमारे पास आ जाएगा 56.1 किलोग्राम्स. क्लियर.
तो हमने 10⁻³ को हटा दिया, इसलिए ये किलोग्राम्स में हो गया। अगर हम 10⁻³ को लगा रहने देते तो वो ग्राम्स में हो जाता, तो आता हमारे पास ग्राम्स में कितना आया 56.1 × 10⁻³ ग्राम्स, और किलोग्राम में ही क्योंकि क्वेश्चन में दिया था तो इट विल बिकम 56.1 किलोग्राम। सो क्या होता है कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैलकुलेट कैसे करना है? फर्स्ट वी विल राइट द स्केलेटन रिएक्शन, देन वी विल बैलेंस द रिएक्शन, देन वी विल calculate the number of moles of reactant and product, then with the help of that we can identify the limiting reagent। जो कम होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा इसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, वी विल कैलकुलेट जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एंड देन वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। कई बार आपको परसेंटेज की फॉर्म में भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो परसेंटेज यील्ड आपका जो क्या है अ कंपैरिजन ऑफ अमाउंट एक्चुअली ऑब्टेन टू द अमाउंट इट वाज पॉसिबल टू मेक, कि कितना बन सकता था और कितना बना। कई बार आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि इतना परसेंट है और इतना परसेंट बना, तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड जो है उसकी और प्लस अपॉन द थ्योरेटिकल यील्ड उसकी है दैट मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ये एक क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने आप लोगों को कल प्रॉब्लम क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था परसेंटेज का, और इसमें भी है एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड विच वे 1.20 grams gave on treatment with excess of AgNO3 solution 2.40 grams of silver nitrate as a precipitate, calculate the percentage purity। नहीं, इसमें परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, बट लाइक मेरे बताने का मतलब आपको ये था कि परसेंटेज में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन सामने आ गया तो इसे कर लेते हैं। वैसे ये आपका आई थिंक मास रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है, स्टोइशियोमेट्री का ही एक प्रॉब्लम है। सो व्हाट दे आर सेइंग है NaCl when reacts with silver nitrate that is AgNO3 it forms a precipitate of silver chloride that is AgCl and NaNO3। अभी because we are doing in the form of mass so we will write the mass of sodium chloride। सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5 ग्राम्स हमारे पास सोडियम क्लोराइड है विच इज़ गिविंग AgCl कितना, सिल्वर का होता है 108 एंड क्लोरीन का होता है 35.5, तो 143.5 ग्राम्स हमें दे रहा है। सो व्हाट दे आर आस्किंग द कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैम्पल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, 143 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कितना, ये जो सिल्वर क्लोराइड हमें मिल रहा है 143.5, ये कितने सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है, इट इज़ दिस वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम 58.5 ग्राम से। और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है उसने 2.40 विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 की तो कोई बात ही नहीं कि उसने बोला 2.50 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड है वो कितना है 2.40, तो अगर वो 2.40 है और AgNO3 सॉल्यूशन वो कह रहा है एक्सेस में है, तो 2.40 एक तरीके से यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट भी हुआ है ना। वैसे तो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ पर हम इसके बेस पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड जो है वो मिलता है 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl से। तो 2.40 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड हमें कितने से मिलेगा, कितना उसके लिए प्योर NaCl चाहिए होगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास आ गया 0.978 ग्राम्स हमें सिल्वर क्लोराइड चाहिए होगा। अब वो क्या कह रहा है कि एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड विच वेज 1.20 ग्राम्स। तो अब 1.20 ग्राम्स सिल्वर क्लोराइड में प्योर सिल्वर कितना है 0.978 ग्राम्स, तो अभी हमने कैलकुलेट ही किया है। तो 100 ग्राम सिल्वर क्लोराइड में प्योर सिल्वर क्लोराइड कितना होगा 0.97 अपॉन 1.20 इंटू 100। तो ये क्या आ गया आपके पास एक्चुअल वैल्यू अपॉन जो आपने देखो पिछले में क्या दिया था हमने, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारी एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास आ रही है, जो हमने कैलकुलेट की कि इतनी ही आनी चाहिए थी एक्चुअली, लेकिन थ्योरेटिकली वो कितना बोल रहा है कि वो 1.20 वे कर रही है, उससे हमने डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका मतलब 81.5 ग्राम्स जो है दैट इज़ द 80.5 ग्राम्स है। और ये हमारा क्या हो गया परसेंटेज में आ जाएगा, इट विल बिकम इन परसेंटेज बिकॉज दे आर आस्किंग इन परसेंटेज। तो 81.5% प्योरिटी है हमारे सैंपल की। क्लियर, ठीक है। 81.5 ग्राम्स नहीं होना चाहिए, ये 85
0.5% होना चाहिए, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक्चुअली निकाला कि अगर हमारे पास एक्चुअल में 2.40 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हो तो हमें सोडियम क्लोराइड कितना मिलना चाहिए, 0.978 मिलना चाहिए, 0.978, और वो है कितना, 1.20 ग्राम्स है ट्रीटमेंट पे। सोडियम क्लोराइड हमने वे किया 1.20 ग्राम्स ही है, तो हमने उसकी परसेंटेज निकाली कि 0.97 का जो है 1.20 कितना परसेंटेज आ रहा है, तो इसका मतलब 81.5% की प्योरिटी उसके अंदर है। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व। अभी आपका स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हो गया और लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, डू प्रैक्टिस ऑल दैट क्वेश्चंस एंड come with your problems day after tomorrow. If you will not bring your problems, then I am not going to tell any question. Thank you. Clear students, bye, have a good day.